Hello everyone. We are going to do the chapter The 100 Dresses 1, which I have taken from the 10th class textbook, The First Flight. Okay, the writer of this chapter is L. Saur Esther. Let's go through the story. This is the real life experience of the writer. It is the story of a girl who received Peggy's hand-me-down dresses. She felt very guilty for not having defended the character, Wanda, in real life. She wrote the story in order to assuage her guilt and to encourage others to stand against bullies. एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये राइटर की लाइफ एक्सपीरियंस है एंड इसमें एक कैरेक्टर है पेगी. इसमें एक कैरेक्टर है मैडी जिसे एक्चुअली देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. वांडा पेट्रोंस्की, second is Peggy and third is Maddie. Okay, you must have gone through the chapter of your textbook also. So Wanda Petronsky जो है she is the main character of this story and actually जो writer है she herself is the Maddie here. Okay, and Maddie is a good friend of Peggy and Peggy के जितने भी जो पुराने ओल्ड ड्रेसेस होते हैं वो सारे मैडी को मिलते हैं एंड पेगी को एक रिच गर्ल दिखाया गया है यहाँ पर. और एक्चुअली पेगी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बुलिंग अ कैरेक्टर वांडा पेट्रोंस्की जो कि एक बहुत ही क्यूट गर्ल दिखाई गई है इसमें. शी इज़ वेरी क्रिएटिव एंड मेनली वी कैन से दैट शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. ओके, let's go through the main character sketches of the story. So first character is Peggy. I have chosen the first character Peggy, who is not really a cruel girl. कहीं ना कहीं आपको स्टोरी में पढ़ते हुए लगेगा कि पेगी शायद एक क्रूअल गर्ल है, but not like that. She is protected. She always protected small students from bullies. She is actually a sensitive girl. If she saw an animal mistreated, she cried for hours and she asked Wanda about her dresses and shoes, but not with a bad intention. Okay, she simply wanted to have some fun. She is the most popular girl in the class. Actually, Peggy is a pretty girl. The next character is Wanda Petronsky. Wanda Petronsky is quite an isolated girl. She is quiet girl. She had no friends. She came to school and went home alone. She had a polished name which looked funny to her classmates. Lived at Bogan Heights, a place that was not particularly liked by her classmates. Her shoes are always covered with dry mud and she always wore a faded blue dress. Okay, and Wanda always preferred to sit in the last row with rough boys. Okay, so Wanda Petronsky बहुत ही चुप रहती है. वो ज़्यादा उसके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं और वो ज़्यादा अपने फ्रेंड से बात नहीं करती है क्योंकि उसके पास फ्रेंड्स ही नहीं हैं. एंड वो अपनी क्लास में लास्ट रो में बैठना पसंद करती है क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट्स में रहती है, विच इज़ टेकन एज अ स्लम area. Okay, and her shoes are always covered with dry mud and वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती है which is a blue dress and its color has gone faded. Okay, so these are the some important points about Wanda. Wanda always sit at the last row. Wanda Petronsky was always quiet and rarely uttered a word. She always sit in the corner seat at the last row with rough boys, not because she was rough and noisy, but because she didn't feel comfortable with other girls in the front row. They made fun of her.
She had no friends and didn't feel comfortable in the company of other girls. Wanda Petronsky अपनी क्लास में हमेशा कॉर्नर सीट में बैठना पसंद करती है, at the last row, and with rough boys. Rough boys, you can say that कुछ कुछ बच्चे हमारी क्लास के ऐसे होते हैं जो हमेशा नॉइजी होते हैं, जो क्लास में कभी भी अटेंशन पे आउट नहीं करते हैं. ओके, सो उन बॉयज़ के साथ ही वांडा बिल्कुल लास्ट वाली रो में बैठना पसंद करती थी, बिकॉज शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द अदर गर्ल्स इन द फ्रंट रो. उनके साथ उसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं थी. सो बिकॉज दे मेड फन ऑफ हर, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. शी हैड नो फ्रेंड्स एंड डिडंट फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ अदर गर्ल्स. Wanda's impression. Wanda's classmates, particularly girls, usually didn't notice Wanda's presence or absence in the class. Only outside school, when they came to school or went home, they would talk to her. They would be talking and laughing on their way to schoolyard. Girls like Peggy would ask mockingly how many dresses Wanda had lined up in her closet. They spoke politely, but only to make fun of her. ओके, सो वांडा की जो क्लासमेट्स थी वो लोग वांडा पे कभी भी ध्यान नहीं देते थे कि वेदर शी इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट इन द क्लास. सिर्फ वांडा को नोटिस किया जाता था जब वो स्कूल के बाहर होती थी, या तो वो घर से स्कूल की तरफ आती है या फिर जब वो स्कूल से घर की तरफ जाती है, तभी उसके बारे में सिर्फ बात की जाती थी और उसका मजाक उड़ाया जाता था. पेगी जो है वो उससे सिर्फ एक ही कॉमन क्वेश्चन हर रोज़ पूछ लिया करती थी कि उसके पास कितनी सारी ड्रेसेस है. उसका कहीं ना कहीं लिंक शायद वांडा की वो सेम ड्रेस विच शी वॉज वेयरिंग एवरी डे, द फेडेड ब्लू ड्रेस विच वांडा यूज टू वेयर एवरी डे व्हाइल कमिंग टू द स्कूल. तो इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए पेगी उसको विदाउट एनी बैड इंटेंशन, जस्ट फन के लिए उससे पूछ लिया करती थी कि हाउ मेनी ड्रेस यू हैव इन योर क्लॉजेट. क्लॉजेट मीन्स योर अलमीरा, जहाँ पर तुम्हारा ड्रेस रखने का स्पेस है. दे स्पोक पोलाइटली बट ओनली टू मेक फन ऑफ हर. उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं था, बट जस्ट वो फन के लिए वांडा को बुली किया करते थे. बेगीज इम्प्रेशन. Peggy was the most popular girl in the class. She was pretty. She had many pretty clothes. Her hair was curly. Her friends thought that she could draw better than other girls. She handed down her old clothes to her closest friend Maddie. Maddie wished that Peggy would not embarrass Wanda by asking uncomfortable questions about her dresses and shoes. Okay, so Peggy कैसी girl थी? Peggy was most popular girl because she was quite rich. और वो हमेशा न्यू ड्रेसेस पहन के आती थी और सबको एक कॉन्फिडेंस था कि पेगी बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेती है. उसके हेयर भी कर्ली थे और वो बहुत अच्छी भी दिखती थी. तो उसके फ्रेंड्स को लगता था कि पेगी से अच्छी ड्राइंग कोई कर ही नहीं सकता है. और पेगी जो है वो अपने जो ओल्ड क्लोथ्स होते थे वो मैडी को दे दिया करती थी. तो मैडी वॉज द गुड फ्रेंड ऑफ पेगी एंड मैडी को अच्छा नहीं लगता था जब पेगी वांडा को सेम क्वेश्चन एवरी डे पूछा करती थी, उसको एम्बैरस कर दिया करती थी बाय आस्किंग द अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज. मेडी नेवर लाइक्ड इट. मेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि पेगी इस तरह से वांडा को अनकंफर्टेबल कर देती है. तो उसका मन करता था कि वो पेगी को मना कर दे कि वो ऐसा ना करे. Peggy made fun of Wanda. Peggy was not really a cruel girl. She protected small children from bullies. She cried for hours if she saw an animal mistreated. But in Wanda's case, she thought differently. She thought that Wanda was telling a lie about her 100 dresses and 60 pairs of shoes. She had always seen Wanda wearing a faded blue dress. Moreover, she didn't like the place, Boggins Heights, where Wanda lived. She also found the Polish name Wanda Petronsky rather difficult and funny.
ओके, सो एक्चुअली अगर हम देखें तो पेगी वॉज नॉट अ क्रूअल गर्ल. पेगी सिर्फ वांडा का थोड़ा सा एक मजाक उड़ा दिया करती थी, लेकिन वो मन से बहुत ही अच्छी थी. उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि अगर स्मॉल चिल्ड्रन को बुली किया जाता था, या फिर अगर उसने किसी एनिमल को मिसट्रीट होते हुए देख लिया तो शी वुड हैव क्राइड फॉर आवर्स. एंड बट वांडा के केस में उसका जो थॉट्स था वो थोड़ा डिफरेंट था. उसे लगता था कि वांडा झूठ बोलती है अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में. एक्चुअली पेगी जब भी उसको क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस है तुम्हारे क्लोजेट में, तो वांडा का जवाब क्या होता था? वांडा का आंसर सिर्फ एक ही होता था कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं एंड आई हैव 60 पेयर्स ऑफ शूज. अगर किसी के पास 100 ड्रेसेस हो सकती हैं तो क्या वो रोज एक ही ड्रेस में स्कूल आ सकता है? तो ये बात जो है पेगी को सुन के ना समझ आती थी और ना ही विश्वास होता था. इसलिए वो हमेशा मजाक उड़ाती थी वांडा का फेडेड ब्लू ड्रेस देखकर. तो और इससे दूसरी बात और ये भी थी कि जहाँ पर वांडा रहती थी, जहाँ से वांडा आती थी, बॉगिन्स हाइट्स, वो जगह भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. उसको एक स्लम एरिया माना जाता था. एंड तीसरी बात क्यों उसको वांडा पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका जो नाम था दैट वाज अ पॉलिश नेम, वांडा पेट्रोंस्की, उसे बड़ा डिफिकल्ट लगता था एंड उसे फनी भी लगता था. तो ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से पेगी जो है वांडा को नापसंद करती थी. एग्जैक्टली बिल्कुल हम हेट्रेड भी नहीं बोल सकते हैं, बट उसका मजाक उड़ाने में, उसका फन करने में पेगी को थोड़ा मजा आता था. नाउ Maddie was herself quite poor. She depended on Peggy's generosity, who handed down her old clothes to her. However, she didn't like Peggy embarrassing Wanda by asking uncomfortable questions related to her dresses and shoes. She couldn't stand up against her closest friend and benefactor Peggy. She wished Peggy would not ask such embarrassing questions. Maddie जो थी वो खुद भी एक poor girl थी. वो खुद dependent थी Peggy की generosity के ऊपर, उसकी उदारता के ऊपर, क्योंकि पेगी की जितनी भी ओल्ड ड्रेसेस होती थी, ओल्ड क्लोथ्स होते थे, वो सारे किसको मिल जाते थे? मैडी को. और उसे, लेकिन मैडी को ये चीज़ पसंद बिल्कुल नहीं आती थी कि पेगी उसका मजाक उड़ाती है, और पेगी जो है मजाक उड़ाती है वांडा का, उससे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछकर, उसकी ड्रेसेस और उसकी शूज़ के बारे में पूछकर, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो वहाँ पर खड़ी रहे जहाँ पर पेगी वांडा का मजाक उड़ा रही है. तो उसे लगता था कि काश पेगी ऐसा ना करे. Next target. Maddie felt that she could be the next target of Peggy and the other girls. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. No doubt Peggy was her closest friend and benefactor. However, Maddie knew that she herself was a poor girl. She wore old clothes given up by Peggy. Peggy and all others could ask her where she had got the dress from which she was wearing. She would have to answer that it was Peggy's old one. She was afraid of this thing always. मैडी का एक और फियर फैक्टर ये था कि जिस तरह से वांडा एक टारगेट बनी हुई है पेगी के लिए, तो हो सकता है कि मैडी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ पेगी. जिस दिन पेगी बोर हो जाएगी वांडा का फन करते हुए, तो नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो मैडी हो सकती है. क्योंकि अगर सारी गर्ल्स ने मैडी से ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्लोथ्स तुम्हें कहाँ से मिलते हैं, तो उसे तो आंसर करना पड़ जाएगा कि ये सारे पेगी के ओल्ड क्लोथ्स हैं. तो इस बात से उसको बहुत डर लगता था, एंड दिस वॉज द मेन फियर फैक्टर फॉर हर, एंड दिस वॉज द मेन रीजन कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब पेगी वांडा का मजाक उड़ाती थी. A letter to Peggy. Maggie didn't like Peggy teasing Wanda Petronsky, but she could not muster up courage to say it to Peggy. Peggy was her closest friend. She gave her old clothes to Maddie, so she thought of writing a letter asking Peggy not to tease Wanda again. But Maddie tore into bits the letter she had started. She thought that Peggy could not possibly do anything that was really wrong.
मैगी के मन में बहुत बार आया कि मुझे एक लेटर लिखना चाहिए। लेटर क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि उसको बिल्कुल करेज नहीं होता था कि वो पैगी को सामने बोलकर समझा सके कि तुम्हें वांडा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सामने बोलकर नहीं समझा सकती थी। उसके मन में ख्याल आया कि मैं एक लेटर में लिखकर पैगी को समझाने की कोशिश करूं, और क्योंकि आफ्टर ऑल पैगी जो है उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसे रोकना चाहिए। ओके, सो मैडी ने उसको समझाने की कोशिश की, एक लेटर भी लिखा उसने, लेकिन वो लेटर पैगी को देने की हिम्मत नहीं हुई और उसने वो लेटर बिल्कुल तोड़ कर दिया। उसने लेटर को बिल्कुल उसको बिट्स में पीसेस कर दिया एंड उसे लगा कि पैगी अगर ऐसा कर रही है तो शायद कहीं ना कहीं ठीक ही होगा, क्योंकि पैगी ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर सकती। Drawing competition. Maddie and others believed that Peggy would win the drawing and coloring competition. Peggy drew better than anyone else in the class. She could copy a picture of some film star's head in a magazine. Moreover, Wanda's skills in drawing and designing had not been revealed yet. Okay, so एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन अनाउंस हुआ और मैडी को एंड पैगी की अदर फ्रेंड्स को सबको यही बिलीव था कि पैगी बहुत अच्छा स्केचिंग करती है, बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, वो किसी भी फिल्म स्टार के फेस को कॉपी कर सकती है। तो इसलिए इस ड्राइंग कंपटीशन के विनर जो है वो पैगी ही रहेगी एंड अभी तक वांडा की स्किल्स का किसी को भी पता नहीं था। Day of competition. The day of drawing and coloring competition was the big day for every child. Maddie and other girls thought that Peggy would win the prize for sure. Peggy and Maddie stopped short and gasped as there were drawings all over the room. Even every ledge and windowsill had them. There were designs with dazzling colors. They were drawn on wrapping paper. More than 100 of them were there, all lined up all over the room. So finally, जो day of drawing and coloring competition था वो आया और Maddie and दूसरी गर्ल्स ने सबने सोचा, सबका एक ही ख्याल था कि शायद पैगी जो है ये प्राइज विन करेगी। तो पैगी एंड मैडी जो है वो बिल्कुल हैरान हो गए और वो शॉक्ड हो गए जब उन्होंने सारी ड्राइंग्स को देखा। In their classroom, there was the drawings everywhere और हर एक लेज पे, हर एक विंडो सिल पे सब जगह ड्राइंग्स लगी हुई थी और वो ड्राइंग्स इतनी कलरफुल थी और they were drawn on the wrapping papers, कलरफुल wrapping papers पर ही कलरफुल ड्राइंग स्केच की हुई थी and they were more than 100 of them. Wanda as winner. When Wanda was announced as the winner of the girls' medal, all applauded. All of them filed around the room to look at the paintings. Maddie showed Peggy one beautiful blue dress that Wanda told them about. Peggy was surprised to see the green one she used to talk about. The boys were not interested in dresses but found time for enjoying and whistling. So, Wanda was announced as the winner of the girls medal and सब बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि सबको ड्राइंग्स बहुत पसंद आई थी। वो जो कलरफुल ड्राइंग्स ऑफ डिज़ाइंस थे ड्रेसेस के वो सबको बहुत पसंद आए थे। जिसने भी बनाए थे, हु वॉज द आर्टिस्ट, उसी को विनर बनना था। और जब सबको पता लगा कि ये ड्राइंग्स वांडा ने बनाई हैं तो सबको बिलीव हुआ कि यस वांडा मस्ट बी द विनर। और मैडी ने देखा कि उसमें एक ब्लू ड्रेस थी जिसके बारे में वांडा ने बताया था मैडी एंड पैगी को। एंड पैगी ने भी नोटिस किया कि वहाँ पर एक ग्रीन ड्रेस थी जिसके बारे में वांडा ने उनको एक बार बताया था। जब भी पैगी उनसे पूछती थी ड्रेसेस के बारे में, जब भी पैगी उसको क्वेश्चन करती थी, उसका फन करती थी ड्रेसेस के बारे में, तो वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है और वो किसी न किसी ड्रेस का डिस्क्रिप्शन भी दे देती थी, चाहे वो ब्लू ड्रेस हो चाहे वो ग्रीन ड्रेस हो। और उसका डिस्क्रिप्शन जो होता था, दैट डिस्क्रिप्शन वाज मैचिंग राइट नाउ विद दीज पिक्चर्स।
ये जो ड्राइंग्स लगी हुई थी इसमें वो डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल मैच कर रही थी। तो मैडी एंड पेगी के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग पार्ट था कि वो सेम डिस्क्रिप्शंस, सेम डिज़ाइंस की पिक्चर्स यहाँ पर लगी हुई हैं। एंड मोर ओवर बॉयज़ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन ड्रेसेस में, क्योंकि बॉयज़ का तो अपना ही ऑरा होता है। दे वर एंजॉइंग द टाइम एंड दे वर whistling एंड मेकिंग नॉइज। Thank you so much. I hope you will read the chapter thoroughly, because reading is the most important thing. So first of all, you should read the chapter and then you can go through the slides prepared by me. Hope you will like it and the things will get easier for you. Thank you so much once again.